translation. So is part 2. Okay, so source एड्रेस ट्रांसलेशन में हम लोगों ने इसके अंदर मैंने 3 ऑप्शंस बताए थे एंड द वेरी फर्स्ट वन वाज लाइक डायनामिक आईपी एंड पोर्ट, और वो हम लोगों ने कर लिया. एंड डायनामिक NAT is just many to many translation, so very rarely this dynamic NAT is used. Or difference between dynamic NAT and dynamic IP and port is just like in dynamic NAT, port is not translated, source port is not translated, whereas in dynamic IP and port, both source IP and source port both are translated. And the third one is static NAT. static NAT तो आज अभी स्टैटिक नेट जो रह गया था वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग दूसरे वाले पे चलते हैं. स्टैटिक नेट. So static NAT means one-to-one static mapping. Static mapping. And of course, connection, the very first connection can be initiated from either side of the network. So connection can be initiated from either side of network, like either from inside to outside or outside to inside, no worry, or DMG anywhere, because there is permanent entry here, can be initiated from either side of the network. And here like there is option to create, बट इसके लिए एक ऑप्शन है यहाँ पे. इधर साइड ऑफ नेटवर्क के लिए हमें एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि देयर इज ऑप्शन टू क्रिएट बाई डायरेक्शनल रूल. बाई डायरेक्शनल का एक ऑप्शन होता है, बट पोर्ट फॉरवर्डिंग or port translation cannot be configured with static NAT. तो एक छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस होता है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, फिर आगे चलते हैं हम लोग स्टैटिक नेट के बारे में. ओके, सो लेट मी टेक माय पेन. All right. So static NAT. Let's say is my firewall, and here in DMG, demilitarized zone, I have a server here. Let's say my web server, and this internal network, and this external. Its private IP address is, for example, 10.0.0.2. And let's say I have a public IP address like 4.5.6.7. So static NAT means IPs are statically mapped. It means 10.0.0.2 IP address is mapped with 4.5.6.7. इसके साथ हम लोग statically map कर देते हैं. तो बाहर से अगर कोई यूजर यहाँ से आता है and destination address 4.5.6.7 है, तो ये डेस्टिनेशन आईपी इस आईपी में ट्रांसलेट होके और यहाँ पे चला जाएगा रिक्वेस्ट. रिप्लाई भी चला जाएगा, रिप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होता बिकॉज इट्स स्टेटफुल इन नेचर. बट if the very first packet like this server initiate the first packet and server को इंटरनेट पे जाना है, let's say just for the sake of downloading some update or patches, so let's say this web server initiates traffic to the internet. So in that situation, this source IP address 10.0.0.2 should get translated to 4.5.6.7. स्टैटिक नेट में 1-to-1 मैपिंग होता है, बट उसके लिए फायरवॉल पे 2 रूल होना चाहिए. क्योंकि अगर एक रूल हम लोगों ने स्टैटिक नेट के लिए एक रूल या पॉलिसी हम लोगों ने क्रिएट किया, सपोज
एक रूल हम लोगों ने क्रिएट किया, लेट्स से इनसाइड या डीएमजी टू आउटसाइड के लिए, डीएमजी टू आउटसाइड। एंड इस रूल में हम लोगों ने कुछ ऐसा क्रिएट किया कि जो सोर्स सेक्शन था उसके अंदर डीएमजी जोन एंड आईपी एड्रेस दिस डेस्टिनेशन outside zone and let's say any and then NAT। तो NAT सेक्शन ये तो मैचिंग क्राइटेरिया हो गया, तो वहां पे हम लोग ने जाके सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन इनेबल किया और इसके अंदर फिर हम लोगों ने स्टैटिक NAT लिया। स्टैटिक NAT अंडर स्टैटिक NAT लेस से हम लोगों ने आईपी दे दिया 456 तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फायरवॉल से ये इंटरनल कंप्यूटर यहाँ से अगर ये इनिशिएट करता है कनेक्शन बाहर के लिए डीएमजी टू आउटसाइड, then source IP address which is 10002 will get translated to 4.5.6.7 and of course reply packet will be allowed to come to this DMG web server क्योंकि because NAT is always stateful in nature। तो स्टेटफुल इन नेचर होने का मतलब ये हुआ कि हमें एक साइड से ही रूल बनाना है, उसका रिप्लाई या रिटर्न ट्रैफिक आ जाएगा क्योंकि नेट टेबल यहाँ पे होता है। बट व्हाट इफ द वेरी फर्स्ट पैकेट कनेक्शन इज बीइंग इनिशिएटेड बाय इंटरनेट क्लाइंट, सो इन दैट सिचुएशन दिस रूल will not match because now source would become outside and source address will be like any address। So of course for that to happen translating IP address and basically destination IP address, if connection is initiated or originated by external client, internet client side, then there has to be another rule just opposite or reverse of this। इसके अपोजिट एक और रूल होना चाहिए। It means we need to create two different NAT policies, one keeping in mind that connection is being initiated by DMG web server to the internet and another if connection is initiated by external client to the DMG server। So keeping in mind this bidirectional connection initiation, we have to create two different NAT policies। अगर ऐसा नहीं है, एक ही साइड से हमेशा कनेक्शन इनिशिएट होगा तो हमें बाई डायरेक्शनल वाली बात या उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा अभी नहीं कह रहा हूं मैं कि अगर फायरवॉल पे कोई कनेक्शन बाहर से ही ले से आया तो उसके रिप्लाई के लिए हमें रूल बनाना है, नहीं, उसके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, वो तो हमेशा स्टेटफुल होता है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पैकेट कनेक्शन इनिशिएशन, जो कनेक्शन इनिशिएट होगा ओरिजिनेट होगा उसके कॉन्टेक्स्ट में। तो अच्छी बात क्या है कि अगर ऐसा हमें रूल बनाना है कि हम लोग चाहते हैं कि पहला पैकेट अंदर से बाहर या बाहर से अंदर ईदर साइड ऑफ द नेटवर्क, तो वहां पर एक बाई डायरेक्शनल का ऑप्शन होता है, वो हमें इनेबल करना पड़ता है ऐसे बाई डायरेक्शनल। तो उससे क्या होगा, एक रूल हम लोगों ने बनाया लेट्स से आउटसाइड टू इनसाइड के लिए या इनसाइड टू आउटसाइड के लिए, मींस डीएमजी टू आउटसाइड के लिए, तो उसका जस्ट रिफ्लेक्सिव जो नेट पॉलिसी होगा, रिफ्लेक्सिव, वो अपने आप क्रिएट हो जाएगा, हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है फिर, लेकिन वो हमें करना पड़ता है पालो अल्टो में। तो उससे ये होगा कि पहला कनेक्शन इनिशिएट हो सकता है फ्रॉम आउटसाइड और फ्रॉम डीएमजी और इनसाइड, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये वाला पॉइंट मैंने लिखा था यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, दिस वन, connection can be initiated from either side of the network provided bidirectional option is enabled। so there is option to create bidirectional rule, NAT rule, ये enable करना पड़ेगा तो ऐसा होगा। और एक clip, हाँ, yes please। Just I'm comparing with the Cisco iOS, okay? So if static entry is there, then there is no need of separate rule if the connection initiated from outside to inside, right? Because Exactly. mapping is mapping already exists there actually in table. Yes, in Cisco it's true, but because it's not like matching zone and all that, but here in Palo Alto firewall for this NAT to happen, this
original packet section. There are two sections like original packet and translated packet section. Correct. So to match those criteria of original packet section, from which zone like data has entered and to which zone like it has to be routed to, and the source and destination address. तो जब तक original packet section match नहीं करेगा तब तक translation नहीं होता है. And Cisco में yes it is true, हम लोग simple like command चला देते हैं IPNet inside source static and then एक IP address यहाँ पे और एक IP address यहाँ पे. तो परमानेंट नेट टेबल में एंट्री होता है और चाहे हम इसको इससे मैप करा लें या इससे इसको मैप करा लें, ऐसे ही होता है, राइट? हाँ, that's correct. In Cisco IOS exactly the same. Like no need to create two different NAT rule in Cisco IOS, but in Checkpoint Firewall, yes, we need to create. Even though manually we will not be creating maybe because there is option to enable bidirectional. Like just an option here. Just we need to click that option in order to create a reflexive net policy, right? So we have to do that because here the matching criteria is like zone, address, and everything. So NAT rule is different, like as compared to Cisco IOS. So that is why like we need to create that. Okay, and is general static NAT, and if now I talk about destination NAT, and here there is some a key point to keep in mind, and I will come to that as well. So destination NAT जो एक और हम लोगों ने देखा था, destination NAT. So again, destination NAT is like it translates destination address and usually is like outside to inside or outside to DMZ. हमेशा ऐसी इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं. एंड यहाँ पे भी एक तरीके से स्टैटिक ही है. डेस्टिनेशन NAT is again a kind of static in nature, so it's static. Now the next question what must be coming up in your mind is like how this is different from like your static NAT, because in destination NAT what we are going to configure here is like this is my Palo Alto firewall, and let's say here I have a server machine, any server, yeah, Windows machine, and this internet cloud. Someone like from the internet side wants to access this server machine, and connection, let's say, hits here onto the firewall to this destination IP address. Let's say 52, and if there is destination NAT policy and firewall, so what firewall will do at this point of time will translate this destination IP address to the internal server IP address. Let's say its IP address is 172.16.0.2. Return traffic will get translated automatically. For that, there is no need to create any NAT rule because it's stateful in nature. So हम लोग यहाँ पे क्या करवाया, हम लोगों ने destination IP को translate करा दिया, but it's only one direction. It means connection जो initiate हो रहा है वो outside to inside हो रहा है एक तरीके से only. Static में एक तो ये option था कि हम लोग inside to outside, outside to inside, bidirectional option was there. And the most important difference between both static and destination NAT is, and before that let me show you the option first, then because the port forwarding option, port forwarding, let's say you want to here NAT policy, NAT here, let's say यहाँ पे हम लोग कोई NAT policy अगर create करते हैं translated packet, this is the destination NAT section, और यहाँ पे ये source है, sorry static का. Static में I was talking about this option bidirectional, ये bidirectional NAT का.
और यहाँ पे अगर हम लोग डेस्टिनेशन की बात करें, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास दो ऑप्शन है, ट्रांसलेटेड एड्रेस एंड ट्रांसलेटेड पोर्ट, एंड दैट इज द बिग मेजर डिफरेंस, लाइक दैट इज IP and port both can be statically translated here in destination net, like जैसे पोर्ट फॉरवर्डिंग कराना हो हमें, तो वो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। ये स्टैटिक नेट में ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे बाई डायरेक्शनल रूल अपने आप क्रिएट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे स्टैटिक में अगर अब हमें पोर्ट ट्रांसलेट कराना है, सो देयर इज नो ऑप्शन हियर, IP ओनली, IP ही सिर्फ ट्रांसलेट होगा विद दिस बाई डायरेक्शनल ऑप्शन, जो भी हम लोग एनालाइज करेंगे। तो ये पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को, जो दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा है डेस्टिनेशन और स्टैटिक में, क्योंकि हम लोग स्टैटिक नेट से भी ऐसा कर सकते हैं, आउटसाइड टू इनसाइड, और इसमें भी कर सकते हैं। और फिर इसमें एक सिनेरियो में बताता हूँ डेस्टिनेशन नेट में व्हाट कैन बी कंफ्यूजिंग, रूल बनाते वक्त वो थोड़ा सा डेस्टिनेशन नेट में कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। सो राजन, इज दिस क्लियर नाउ? एक्सक्यूज मी सर। हाँ मैं, यस प्लीज। अच्छा, लाइक जो हमारा स्टैटिक नेट है वो हमारा इनसाइड टू आउटसाइड या फिर DMZ टू आउटसाइड होगा? या आउटसाइड टू DMZ और आउटसाइड टू इनसाइड भी हो सकता है, राइट। मतलब लेकिन रूल बनाना पड़ेगा। ओके, एंड हमें वो बाई डायरेक्शनल करना पड़ेगा इन केस कि अगर कोई आउटसाइड से भी कनेक्शन इनिशिएट कर सकता है तो। बिल्कुल करेक्ट। बट अगर जो डेस्टिनेशन नेट है वो हमारा सिर्फ आउटसाइड टू इनसाइड है, तो डेस्टिनेशन नेट केस में अगर कोई अंदर से अगर कोई इनिशिएट करेगा तो वो होगा नहीं। हाँ वो नहीं होगा। और दूसरी बात, एक और डिफरेंस सामने निकल के आया कि स्टैटिक नेट में अगर बाहर से अंदर कोई रिक्वेस्ट आ रहा है और वहां पे हमें पोर्ट भी ट्रांसलेट कराना हो, क्योंकि नॉर्मली स्टैटिक नेट मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग इसीलिए कॉन्फ़िगर करते हैं कि बाहर से कनेक्शन इनिशिएट हो। यूजुअली हम लोग जो स्टैटिक नेट हो या डेस्टिनेशन नेट हो, दोनों हम लोग एक ही पर्पस के लिए वैसे कॉन्फ़िगर करते हैं कि कनेक्शन बाहर से इनिशिएट हो रहा है इंटरनेट साइड से, लेकिन लेट्स से कनेक्शन इनिशिएट हो रहा है पोर्ट नंबर 80 पे और माय सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 8080, राइट? ओके, तो वहां पे भी हम उससे कर सकते हैं। हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन वो इससे ही कर सकते हैं सिर्फ डेस्टिनेशन नेट से। मतलब अगर ये मेरा फायरवॉल LS है, इसमें DMZ वेब सर्वर एंड सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर 8080 एंड आउटसाइड रिक्वेस्ट जो आ रहा है वो आ रहा है पोर्ट 80 पे और IP आ रहा होगा कुछ पब्लिक IP पे आ रहा है, तो डेस्टिनेशन नेट में ऐसा भी ऑप्शन है कि हम लोग इसको और इसको दोनों को ट्रांसलेट करा सकते हैं। लाइक यहाँ पे जो हमारा डेस्टिनेशन नेट है उसका पर्पस वही है कि जब हमारा कनेक्शन बाहर से इनिशिएट होगा तभी हम उसको यूज करेंगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। लेकिन जब DMZ में जो रिसोर्सेज होता है उसमें होता है ऐसे ही है, लेकिन यूजुअली ये लोग कनेक्शन इनिशिएट करते नहीं है कभी, क्योंकि इनको जरूरत नहीं है, बाहर से हमेशा पहला कनेक्शन आता है। बट एक ही दोनों हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे सेपरेट करके पालो अल्टो दे दिया। लेकिन जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, जरा अब देखो इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है थोड़ा सा, और इंटरेस्टिंग पार्ट क्या आ रहा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब आप देखते हैं, एक सिनेरियो देखते हैं हम लोग और फिर उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे हम लोग। तो लेट्स से नाउ इसमें पालो अल्टो फायरवॉल, ये तो अभी बेसिक नेट के बारे में बात हो गई। अब थोड़ा सिनेरियो देखते हैं हम लोग, क्या क्या सिनेरियो है हमारे पास। पालो अल्टो फायरवॉल है मेरे पास और यहाँ पे इसके पीछे एक विंडोज मशीन है, इस विंडोज 10 मशीन, और इसका IP है और ये रियल में है, मतलब जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ रियल का ही ले रहा हूँ। ये IP है, ये इसके लिए गेटवे ही है, ये गेटवे। मैं इसको डायग्राम उधर बना लेता हूँ प्रॉपर, चलो ठीक है, यहीं से पता लग जाएगा। और ये गेटवे एड्रेस, दिस इंटरफेस एक्सटर्नल, ये इंटरनल साइड वो तो कांटेक्ट खुल गया। अब मैं थोड़ा सा एक सेकंड ये वाला है ना, ये वाला पहला वाला ले लेता हूं, हाँ, क्योंकि इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे हो रहा है। अब वो आया ना, ये SBI वाला मैसेज आ रहा है वाला, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने बात करी सिर्फ नेट इन जनरल, मतलब नेट का बेसिक समझ लिया हम लोगों ने कि सोर्स नेट क्या होता है, डेस्टिनेशन नेट क्या है, सोर्स में 3 ऑप्शंस क्या है और डेस्टिनेशन नेट में क्या ऑप्शन है। अब हम लोग थोड़ा सा उसको मेडिकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, सिनेरियो बेस्ड देख रहे हैं क्या क्या सिनेरियो इसके अंदर हो सकता है, और वो फटाफट हम लोग 2-3 एग्जांपल लेते हैं। और लेट्स से एक मैं डेस्टिनेशन नेट का एग्जांपल लेता हूं पहले, डेस्टिनेशन नेट एग्जांपल, और
सिनारियो ये है हम लोग का कि यहाँ पे ये फायरवॉल है पालो अल्टो का, एंड external interface which goes to internet side and internal interface. On the LAN side एक हमारे पास विंडोज का मशीन है यहाँ पे ये, और दिस विंडोज मशीन विंडोज 10 मशीन है, ये LAN सेगमेंट पे है, और ये जो इंटरफेस है ये रियल में इंटरनेट से कनेक्टेड है यहाँ पे, ओके यहाँ पे कनेक्टेड है। और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हम लोग का, ऑब्जेक्टिव भी लेके चलते हैं अभी, तो ये थोड़ा सा निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेट मी राइट डाउन, सो इस PAFW इस इंटरनेट आउटसाइड इंटरफेस E1/2 IP एड्रेस जो कल हम लोगों ने देखा था 51/29, and this is outside interface. All good. And here Ethernet 1/1 172.16.0.1 and is inside in zone, and is my Windows 10 machine, and its IP address is 172.16.0.2, और यहाँ पे RDP इनेबल है, यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप, ठीक है, RDP इज इनेबल, यहाँ पे RDP इनेबल है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज to access Windows RDP access of Windows 10 machine by using 114.30.77.52 IP address. तो RDP access of Windows 10 machine from internet side. सर ये 52 है 51? नहीं, इस बार मैंने 52 लिया, एक एक्स्ट्रा आईपी ले लिया, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि नेटिंग में हम लोग वही आईपी ले जो इंटरफेस का हो, राइट? हम लोग एक्स्ट्रा ले सकते हैं, इंटरफेस के साथ भी कर सकते हैं, बट मैं इंटरफेस के अलावा दूसरे आईपी के साथ कर रहा हूँ। एक और आईपी उसी रेंज का है, मान लेते हैं 52, और ये हमें सर्विस प्रोवाइडर ने दिया हुआ है, और ये हम लोग का अब टारगेट है, इसको हमें अचीव करना है, राइट? अब इसके लिए अगर आप ध्यान से देखें तो हमें डेस्टिनेशन नेट की बात हो रही है। सो नाउ आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर डेस्टिनेशन नेट, और नेट की बात हो रही है, तो अब जरा हम लोग समझते हैं डेस्टिनेशन नेट कैसे कॉन्फ़िगर होगा यहाँ पे, और क्या पॉलिसी बनेगा। डेस्टिनेशन नेट पॉलिसी, यहाँ पे जैसा हम लोगों ने बताया कि एक नेम देना होता है, तो जैसे नाम दे दिया हम लोगों ने, आउटसाइड टू इनसाइड RDP access is just name, rule name, nothing very important, and then source section. Source means not source, original address packet section, ये वाला section जब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ओरिजिनल पैकेट और ट्रांसलेटेड पैकेट, राइट? इसमें बात हो रही है ओरिजिनल और ट्रांसलेटेड पैकेट में। सो ओरिजिनल पैकेट सेक्शन, अब जो रूल बनाएंगे तो ओरिजिनल पैकेट सेक्शन में यहाँ पे हम लोग को चीजें कॉन्फ़िगर करनी है ओरिजिनल पैकेट सेक्शन में, और एक ट्रांसलेटेड पैकेट सेक्शन होगा फिर, और यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन शायद क्रिएट होगा, और वो क्यों होगा वो समझाता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। ये थोड़ा सा यहाँ पे कलर वो ब्लू ले लेता हूँ, ओके। ओरिजिनल पैकेट सेक्शन हियर, यहाँ पे कई चीजें पूछेगा वो, और हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एक तो सोर्स जोन क्या होगा, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन जोन, बेयर मिनिमम लेके चल रहे हैं हम लोग अभी,
डेस्टिनेशन जोन एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। हम लोग सर्विस भी ले सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है, वैसे तो सर्विस भी ले सकते हैं। ये वो एक ओरिजिनल पैकेट सेक्शन होगा। उसके बाद अगर हम लोग जाए आगे तो यहाँ पे एक ट्रांसलेटेड पैकेट सेक्शन होगा। ट्रांसलेटेड पैकेट सेक्शन होगा कि क्या ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेटेड पैकेट सेक्शन में बहुत इजी होगा, क्योंकि ट्रांसलेटेड पैकेट सेक्शन में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, तो इट्स वेरी इजी। ट्रांसलेटेड पैकेट सेक्शन में हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं डेस्टिनेशन, क्या करना है, ट्रांसलेशन, या जो क्या एग्जैक्ट टर्म क्या लिखा होता है यहाँ पे देख लेते हैं। डेस्टिनेशन एड्रेस ट्रांसलेशन, एड्रेस ट्रांसलेशन, एंड अंडर दिस डेस्टिनेशन एड्रेस ट्रांसलेशन, इसके बाद नीचे क्या लिखा होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस के नीचे ठीक नीचे हमें क्या लेना होगा, आईपी देना है। यहाँ पे आईपी, पोर्ट तो नहीं है, और आईपी यहाँ पे क्या दे देंगे हम लोग, 16.0.2। डन। यहाँ पे अब आप देखें सोर्स जोन। अब ये सोर्स जोन जो हम लोग लेने वाले हैं वो क्या लेने जा रहे हैं हम लोग, सो लुक एट द ऑप्शन हियर एंड लेट मी टेक द ब्लैक कलर, नो इशू। सोर्स जोन, तो ये होगा आउटसाइड, request will come from outside. Source address, we do not know the source address, so will be any. So source address is any, right? तो source address any हो जाएगा। अभी बाद में कलर चेंज कर देता हूँ इसका। source address any हो जाएगा। और destination address, public IP address, which is 52 जोन है, अभी सॉरी जोन है ये कंफ्यूजन होगा अभी आपको थोड़ा सा। आउटसाइड एंड डेस्टिनेशन एड्रेस इज 114.30.77.52 एंड सर्विस में वी मे स्पेसिफाई नो इशू माइक्रोसॉफ्ट आरडीपी, दैट इज टीसीपी पोर्ट 3389 आई बिलीव। ओके, सो यहाँ पे अब कंफ्यूजन उठाओ ना, राइज ये तो होगा है थोड़ा बटन सा। वाला। हाँ, ये जो मैंने फिल किया है यहाँ पे, अब इसको आप देखें, और ये सिक्योरिटी पॉलिसी है अभी। और एक हम लोग को क्या और क्रिएट करना पड़ेगा, सॉरी ये नेट पॉलिसी है, और एक और क्रिएट करना पड़ेगा हमें सिक्योरिटी पॉलिसी। वो तो अभी बात ही नहीं हुई है सिक्योरिटी पॉलिसी की, बट सिक्योरिटी पॉलिसी भी क्रिएट करना पड़ेगा हम लोग को। ओके, ये हम लोगों ने कंफिगर किया और ये ट्रांसलेट किया। तो यहाँ पे भी ये वाला एड्रेस, इसको मैं यहाँ पे ब्लैक ये कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब आप देखें इसमें ये अभी हम लोगों ने डेस्टिनेशन नेट पॉलिसी क्रिएट किया हुआ है। इसमें सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है, पहली बात सिक्योरिटी पॉलिसी की बात नहीं हो रही है, ये नेट पॉलिसी है। एक हालांकि हमें एक सिक्योरिटी पॉलिसी भी क्रिएट करना पड़ेगा, और वो अगर साइड बाय साइड अगर मैं यहाँ पे, ये तो नेट पॉलिसी था, और एक हम लोग को सिक्योरिटी पॉलिसी भी क्रिएट करना पड़ेगा, वो अलग होगा सिक्योरिटी पॉलिसी, और सिक्योरिटी पॉलिसी भी क्रिएट करना पड़ेगा हमें। और जो सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट करेंगे हम लोग, वो कुछ ऐसा होगा। सोर्स सेक्शन में आउटसाइड जोन एंड एनी एड्रेस, डेस्टिनेशन inside zone and 114.30.77.52 and application MS RDP and then
allow, ये होगा। तो we need to create two different policies. One is NAT policy and other one is security policy. सर ये जो डेस्टिनेशन है ये तो अपना प्राइवेट आईपी होना चाहिए ना, यहाँ पे होगा ना फिर, या फिर ये आउटसाइड होगा फिर? ना वैसे तुम्हारे कुछ नहीं है। हाँ वही तो कंफ्यूजन है यहाँ पे, और वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो डेस्टिनेशन, एक सेकेंड, ये डेस्टिनेशन का मैं थोड़ा सा, ये यहाँ पे डेस्टिनेशन है, चलिए ठीक है, डेस्टिनेशन पता लग रहा है DST। तो exactly the confusion here is, what is confusion now? इसको मैं जरा, अरे बहुत गर्म हो रहा है वैसे। ठीक है, इसको मैं सेव कर लूंगा इस फाइल को भी आपके नॉलेज के लिए। अब आप देखिए, ये जो सिनेरियो था हम लोगों ने जो लिया, इसमें कंफ्यूजन क्या हो रहा है, बिल्कुल कंफ्यूजन वाली बात भी है, और कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ मैं यार, बाहर कोई बैठा हुआ है, यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है यार वो भी। उसका रिक्वेस्ट है डेस्टिनेशन IP 114.30.77.52 पे, और इसी को हम लोग ट्रांसलेट करा रहे हैं इस IP के साथ 2.2 के साथ। नाउ अब जो यहाँ पे रिक्वेस्ट है, अगर हम लोग नेट पॉलिसी को मैच कराएं तो सोर्स जोन इज आउटसाइड, सोर्स जोन आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड जोन पे आया। सोर्स एड्रेस एनी, परफेक्ट, एनी है। व्हाट्स द कंफ्यूजन हियर इज द डेस्टिनेशन जोन, ये आपको राइट, ये आपको दिख रहा है, और डेस्टिनेशन जोन आउटसाइड दिख रहा है, जबकि जाना कहाँ है इसको, नेट होके इधर की तरफ, इनसाइड की तरफ जाना है। तो हैरानी की बात यह है कि हम लोग ने सोर्स जोन और डेस्टिनेशन जोन दोनों में आउटसाइड ले लिया यहाँ पे नेट पॉलिसी में, और डेस्टिनेशन एड्रेस इज करेक्ट, ये पब्लिक IP एड्रेस है, ये पोर्ट है, और ट्रांसलेट ये होगा, तो ये सब कुछ ठीक ठाक है। द ओनली कंफ्यूजन हियर इज डेस्टिनेशन जोन। अच्छा, एंड ऑन द अदर हैंड व्हाट अबाउट सिक्योरिटी पॉलिसी? सिक्योरिटी पॉलिसी में आउटसाइड जोन, जोन की बात हो रही है, एंड इनसाइड जोन, तो ठीक है, आउटसाइड टू इनसाइड जोन, बट इट्स वेरी इनकंसिस्टेंट in destination NAT policy. NAT policy, both like source and destination zone both are outside zone, whereas in security policy source zone is outside zone and destination zone is inside zone. So it's very confusing here in Palo Alto firewall ki why we have taken outside zone here, why not like inside zone, because after the translation packet would be routed to inside zone, because in Palo Alto firewall, I'll just note it down in the notepad as well. In Palo Alto firewall, whether it's destination NAT, DMG NAT, any kind of NAT, is nothing to do with the destination NAT. In fact, it's general like rule of thumb in Palo Alto firewall. Zone हमेशा जो भी हम लोग जोन लेते हैं प्री NAT जोन होता है, प्री NAT जोन। इट मीन्स कि जोन बिफोर एक्चुअल NAT, बिफोर एक्चुअल नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। और सिक्योरिटी पॉलिसी में जो सिक्योरिटी पॉलिसी होता है उसमें जो जोन लेते हैं हम लोग वो पोस्ट NAT जोन होता है। NAT होने के बाद जो जोन डिसाइड हुआ वो लेते हैं हम लोग सिक्योरिटी पॉलिसी में। तो इन सिक्योरिटी पॉलिसी पोस्ट NAT जोन एंड इन NAT पॉलिसी प्री NAT जोन, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि NAT पॉलिसी में जोन डिसाइड करते वक्त डेस्टिनेशन जोन की बात हो रही है। हम लोग इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि जो IP हम लोग नेटिंग में यूज करने वाले हैं वो IP किस इंटरफेस साइड पे है। सो दैट इज करेक्ट कि क्लाइंट इज सिटिंग हियर इंटरनेट साइड, क्लाइंट जो है वो सोर्स जोन को बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो डेस्टिनेशन है सॉरी जो क्लाइंट का जोन है वो आउटसाइड जोन है विच इज सोर्स, लेकिन जो डेस्टिनेशन है वो भी आउटसाइड है because the destination IP address belongs to this interface only. So we have to keep this in mind that to which interface, to which zone this IP address is resting in, right? कहाँ पे ये IP address है, वहाँ पे किस इंटरफेस के साइड में है। तो जो पब्लिक IP address है वो हमेशा आउटसाइड इंटरफेस पे ही होगा, और इसीलिए मैंने सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों में आउटसाइड जोन लिया। हालांकि कई लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, तो व्हाट दे नॉर्मली प्रीफर टू सेलेक्ट हियर any zone. So definitely your NAT policy will work
because any means any zone, but agar like if precisely I want to put the zone name here, so the zone should be outside. और ये बात सिर्फ डेस्टिनेशन नेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी एक दो और एग्जांपल हम लोग कर लेंगे। कोई भी एग्जांपल हो आपको ये इस तरीके से लेके चलना पड़ता है। तो मैं पहले इस पॉइंट को यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा सा आपको शायद आसानी हो और समझने में। इन द नोटपैड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, की पॉइंट्स। ये मैं ये भी सेव कर दूंगा जो पेंट ब्रश भी है। की पॉइंट्स एंड दैट इज pre-NAT zone is taken in NAT policy, whereas post-NAT zone is taken in security policy, right? और हम लोग क्या देखते हैं कि जो NAT IP है, नेट आईपी मतलब जो पब्लिक आईपी है, पब्लिक आईपी यूजुअली इन मोस्ट ऑफ द केसेस टू व्हिच इंटरफेस या जोन नेट आईपी या पब्लिक आईपी इज रेस्टिंग इन, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो हमें ये ध्यान देना होता है कि जो प्री नेट जोन है वो हम लोग नेट पॉलिसी में ले रहे हैं, और जो पोस्ट नेट जोन है वो हम लोग सिक्योरिटी पॉलिसी में ले रहे हैं। और इसकी वजह से इस तरीके का यहाँ पे रूल बनाना पड़ा, जो ये यहाँ पे रूल बनाया हम लोगों ने। ये अब सवाल ये उठता है कि थोड़ा सा ये लाइन गड़बड़ दिख रही है तो इसको हटा ही देते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर कुछ और हम लोग एक दो और एग्जांपल इसमें देखें तो शायद थोड़ा सा और क्लियर हो, क्योंकि जोन सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है आपके लिए, बिकॉज जोन इज लाइक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो अगर जोन में कुछ भी गड़बड़ी हो जाएगा तो विल क्रिएट प्रॉब्लम। सो बिकॉज इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सो जोन मीन्स लाइक शुड बी करेक्ट। जो जोन हम लोग ले रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर जोन ऐसे करना है, यहाँ से डिलीट ऐसे कर देता हूँ, जोन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए तभी बात बनेगी। ठीक है, तो डेस्टिनेशन नेट पॉलिसी लिया था हम लोग ने, सिक्योरिटी पॉलिसी लिया, और दोनों में थोड़ा सही है। और सिक्योरिटी पॉलिसी में जो हम लोग प्रोटोकॉल ले रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, तो वैसे डेस्टिनेशन नेट में प्रोटोकॉल या सर्विस लेने की जरूरत नहीं थी। अब अगर एक छोटा सा और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, अभी आपको आइडिया लगेगा। तो